لاہور میں صبح سویرے سورج کی انٹری، گرمی کی حدت میں معمولی اضافہ، رات میں معمولی ہبس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ آج شہر کا درجہ حرارت کم سے کم 26 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے 2 روز تک بارش کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ شوگر مافیا کی بے ضابطگیوں کی آواز ایوان میں گونجنے لگی۔ فیصل آباد میں شوگر ملز مالکان زمینداروں کے پیسے نہیں دے رہے۔ حکومتی رکن راؤ کاشف کی پنجاب اسمبلی اجلاس میں دہائی۔ اسپیکر ملک احمد خان نے شوگر کین کمشنر کو اسمبلی میں طلب کر لیا۔ کہا کہ شوگر کین کمشنر سے رپورٹ لیں کہ کتنی ادائیگیاں باقی ہیں۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ پنجاب اسمبلی میں تمام سکولز میں طلبہ کے موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور۔ حکومتی رکن راحیلہ خادم حسین نے قرارداد ایوان میں پیش کی۔ کہا کہ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ بچوں کی ذہنی اور جسمانی اور سماجی تربیت کی اولین ذمہ داری حکومت کی ہے۔ سوشل میڈیا کے بڑھتے استعمال کی وجہ سے بچوں کے ذہن اور اخلاقی اقدار متاثر ہو رہے ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سرکاری میڈیکل کالج کے قیام کی بھی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد حکومتی رکن پنجاب اسمبلی امجد علی جاوید نے پیش کی تھی۔ پاکستان کی پہلی جامع گندم پالیسی بنانے کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت کا عمل شروع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر برائے صنعت اور پیداوار رانا تنویر حسین کی ملاقات ہوئی۔ آئندہ سال کے لیے گندم کے اسٹریٹجک ذخائر بہتر کرنے کے لیے اقدامات پر غور۔ رانا تنویر حسین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی صلاح متاثرین کے لیے انتھک محنت پر خراج تحسین پیش کیا۔ یونیورسٹی آف لاہور میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، شرکاء کا ملک میں نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے مطالبے کی حمایت اور نئے صوبے بنانے پر زور۔ کانفرنس میں ملک بھر سے 25 سے زائد پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور چیئرمین بورڈز آف گورنرز نے شرکت کی۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ سہیل افضل، سی ای او راشد لطیف خان، یونیورسٹی صباحت خان اور وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شامل۔ ترجمان ایپسب میاں عمران مسعود بھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شریک ہوئے۔ ایپسب کی جانب سے چھٹی ریکٹرز کانفرنس کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا۔ کانفرنس 3 سے 5 دسمبر کو اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی۔ پنجاب پریمیئر لیگ نے ایک سیکنڈ ٹیئر کریٹ کیا ان پلیئرز کے لیے پورے پاکستان سے، جو کہ ادروائز ان کے پاس شاید کوئی جگہ نہیں کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکے، اور پھر نیشنل لیول پہ اور پی ایس ایل میں اور انٹرنیشنل ٹیمز میں بہت سارے بچے یہاں سے نکل کے انٹرنیشنل کلبز میں کھیلے۔ ایپسب کا ملکی تاریخ کا پہلا سپورٹس اولمپیاڈ منعقد کرانے کا اعلان۔ اولمپیاڈ 2025 کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ صدر ایپسب پنجاب چیپٹر اویس رؤف کہتے ہیں کہ پنجاب پریمیئر لیگ سیزن 2 کے بہت سے کھلاڑی انٹرنیشنل میچز کھیل رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، صرف کھلاڑیوں کو پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اگر آپ 25 ایئرز سے کم کی ایج کو دیکھیں تو 60% سے زیادہ جو ہے وہ یوتھ ہے، اور سب سے زیادہ ہماری یوتھ جو ہے، شاید اگر کسی سپورٹس کو میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ بھی اور ہماری یوتھ بھی کسی سپورٹس کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہے اور کھیلنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کرکٹ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک پی ایس ایل کا ایک ہمیں اچھا فورم ملا، وہاں سے ہماری نیشنل ٹیم میں لوگ آئے۔ اس کے بعد اب جیسے یہ پریمیئر لیگ کا ہمیں ایک فورم ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے یہاں سنا کہ یہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس دفعہ جوش و خروش بھی زیادہ ہے۔ پی ایس ایل کے بعد پنجاب پریمیئر لیگ کرکٹ کھلاڑیوں کے بہترین فارم ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ مصطفیٰ شجاع الرحمان کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پنجاب حکومت کا کھیلوں پر بہت زیادہ فوکس ہے۔ کھیلوں کا بجٹ پچھلے سال کی نسبت دگنا کر دیا۔ حکومت کی کوشش ہے کہ کرکٹ سمیت تمام کھیلوں میں کھلاڑیوں کو سہولیات فراہم کرے۔ لاہور میں انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس کے نئے کیمپس کا شاندار افتتاح۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس برائے بورڈز مزمل محمود اور
MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की खसूसी शिरकत। चेयरपर्सन ISLB प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा अब्दुल खालिक, CEO महानूर चौधरी समेत फैकल्टी और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा अब्दुल खालिक ने कहा कि इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस तालीमी मैदान में एक नई मिसाल कायम करेगा। ट्रांसनेशनल एजुकेशन के लिए हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है, जो हमारा नियत है ये कि हम मिडिल क्लास के जो हमारे बच्चे हैं उनको हम वहां तक पहुंचाएंगे जहां पर उन्होंने ख्वाब देखा और उनके पेरेंट्स ने देखा। इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तहानात के नताइज। लाहौर बोर्ड पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के नामों का ऐलान आज दोपहर 4 बजे करेगा। इंटर पार्ट 2 नताइज का बाकायदा ऐलान कल सुबह 10 बजे किया जाएगा। रवा साल पार्ट 2 के इम्तहानात में 2.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। रिलीफ की उम्मीद लगाए अवाम मायूस। डीजल की कीमत में इजाफे और पेट्रोल की कीमत में कमी न होने पर गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं कि सैलाब ने पहले कहीं का नहीं छोड़ा, हर चीज़ महंगी हो गई है। हमने हुकूमत से रिलीफ की उम्मीदें लगा रखी थी। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने का मुतालबा। की वजह से सारी बात है, इन्फ्लेशन के नंबर बढ़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस कंडीशन में रिलीफ दे आवाम को, क्योंकि आवाम ऑलरेडी बड़ी डिस्टर्ब है। रूरल एरियाज़ हमारे बड़े डिस्टर्ब हैं। रिलीफ की उम्मीद तो हर हुकूमत से रखी है, लेकिन मिली नहीं कभी आज तक। तो बेहतर यही है कि उनको चाहिए कि आवाम के बारे में कुछ सोचें। तो ये लोग सोचते नहीं हैं, तो उम्मीदें ही बस रह गई हैं। लाहौर में ज़रे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई। बारिशों के बावजूद पानी की रिचार्जिंग नाकाफी साबित हुई। महकमा इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिर्फ 15 लाख लीटर पानी को मसनूई रिचार्जिंग के जरिए इस्तेमाल किया गया। ज़रूरत 10 से 15 एकड़ फीट पानी की थी। ट्यूबवेल्स की तादाद बढ़ने से पानी की सतह मजीद गिर रही है। शहर में तकरीबन 1800 ट्यूबवेल्स दिन रात चलते हैं। बड़े डैमों के साथ अंडर ग्राउंड डैम्स की भी अशद ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग का साफ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG साफ पानी अथॉरिटी ने हंगामी इक़दामात और जारी रिलीफ ऑपरेशन के बारे बिलाल यासीन को आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर जनूबी पंजाब में पानी की तकसीम को तेज़ किया जाए। सैलाब से मुतासरा शाहराहों, पुलियों और छोटी सड़कों की तफसीलात जारी। सूबाई वज़ीर तामीरात ने हालिया सैलाब में 70 ब्रिज अप्रोच रोड्स मुतासर हुए हैं। 51 ब्रिज अप्रोच रोड्स को मुरम्मत करने के बाद बहाल कर दिया गया। 91 पुलियों को भी मुरम्मत कर दिया गया है। सैलाबी पानी पंजनत के मकाम पर इकट्ठा है। सिंध हुकूमत की हिकमत अमली के बायस सिंध में नुकसान कम से कम हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मौजूदा नुकसान का अंदाज़ा सिर्फ एक किसान ही लगा सकता है। चावल इस साल 1600 की बजाय 3-4 हज़ार रुपये मन में फरोख्त हो रहा है। सियासी बेरोजगारी का रोना रोने के लिए PTI काफ़ी थी। पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत पड़ गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का PP रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हम सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं, इत्तेहादी समझ कर बर्दाश्त कर रहे हैं। इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं कि आपके जाली फ़लसफ़े और नाकाम थ्योरियाँ भी सुनते जाएं। चौधरी मंजूर और हसन मुर्तज़ा अपने फ़लसफ़े और दुख बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को सुनाएं। सैलाब से फ़िलहाल किसी शहर या इलाके में गैस की फराहमी मुतासर नहीं होगी। तर्जुमान सुई नॉर्थवेंड के मुताबिक सैलाब के पेश नज़र मुल्तान में 36 इंच पाइपलाइन को पहले ही अलग कर दिया। सैलाबी सूरत हाल बेहतर होते ही पाइपलाइन से सप्लाई मामूल के मुताबिक कर दी जाएगी। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का रोड मैप टीम के साथ अहम इजलास। HPV और खसरा वैक्सीन मुहिम की सूरत हाल का जायज़ा लिया। महकमा सेहत और आबादी के तमाम प्रोग्राम्स का 1 साल का एक्शन प्लान तलब कर लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि तमाम प्रोग्राम्स के सरबराह 7 दिनों में 1 साल का एक्शन प्लान
टाइम लाइन के साथ जमा कराने के पाबंद होंगे। शहर में स्मॉग भरने लगी मगर कार्बन कंट्रोल करना मुश्किल। महकमा माहौलियात के अफसरान ने टायर जलाने वाले प्लांट्स की निशानदही को नज़रअंदाज कर दिया। करोल घाटी, शरीफपुरा और दरोगावाला में प्लांट्स चलने का इंकशाफ। खुफिया चेकिंग में ताज़ा कार्बन और टायर जलाने के शवाहिद भी मिले। हुकूमती कर्जों में एक बार फिर इजाफा। पिछले बरस की निस्बत कर्जों में तकरीबन 9,000 अरब रुपए बढ़ गए। हुकूमती कर्जों में एक ही साल में 13% इजाफा हुआ। हुकूमती कर्जे 77,888 अरब रुपए तक जा पहुंचे। रेवेन्यू दफातर का रिकॉर्ड छुपाना, तो इस पर एक्शन होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने मेंबर ऑडिट, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। अब मेंबर AIM किसी भी रेवेन्यू दफातर का रिकॉर्ड चेक कर सकेंगे। सीनियर मेंबर नबील जावेद ने कहा कि इनकार या ताखीर में लेस्को रीजन में बिजली चोरी पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। रवामा 2200 से ज़ायद मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरों से 1 करोड़ 75 लाख से ज़ायद की रिकवरी की गई। लेस्को के मुताबिक 2000 घरेलू, 86 कमर्शल, 15 ज़रई और 13 सनती सारिफीन बिजली चोरी करते पकड़े गए। चिराग तले अंधेरा। LTA हेड ऑफिस से मुत्तसिल हॉकी स्टेडियम जौहर टाउन अंधेरों में डूब गया। 5 दिनों से बिजली बंद है। निगरानों की जानिब से स्टेडियम के 11 कमरे प्राइवेट लोगों को किराए पर दिए जाने का इंकशाफ हुआ। LTA हुकाम ने बशारत नामी केयर टेकर को हटा दिया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर LTA का मज़कूरा केयर टेकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। दरोगेवाला की टोके वाली गली मौत का कुआं बन गई। करंट से नौजवान की हलाकत के बावजूद तारों का जाल जूं का तू। सीवरेज सिस्टम भी नाकाम। अवाम का अवामी नुमाइंदों के खिलाफ शदीद एहतजाज। 1 साल कबल लटकते तार से करंट लगने से 4 बहनों का इकलौता भाई बिलाल भी जान की बाजी हार गया था। मेरा भतीजा था, वो इधर नहा रहा था। उसको मैंने बोला आजा यार, बस बारिश में बच्चे नहाते भी ना, फिर करंट लगा उसे, वो फौत हो गया। यही मसला है, ये सीवरेज का मसला है। ये सही हो जाए हमारा तो इतना पानी खड़ा होता है, इतना पानी बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा इधर पानी खड़ा होता है। कल हमारे MPA भी आए हैं, MNA भी आए हैं इधर, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। बस यही कहते हैं कि बन जाएगा, गुलियाँ ठुकी हैं, ये ठुका है। ये तो बात ही नहीं है ना करने की। जो बात होती है वो करते नहीं है। ये 15 सालों से हम कह रहे हैं ये हमारा सिविलिंग का मसला है, ये करवाएं फिर बाद में वो करवाएं। नलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਮੋਟਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਬਸ। खबरदार होशियार, अब चालान के साथ होगी FIR। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। CTO डॉक्टर अथर वहीद ने तमाम SPs और DSPs को मुतहरिक कर दिया। कहा कि स्कूल वैन्स और रिक्शों में गुंजाइश से ज़्यादा बच्चों को बिठाना नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अब सिर्फ चालान नहीं, FIR भी कटेगी। चालान करने का शौक अपने इलाके में पूरा करें, हमारी हदूद को मत छेड़े। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने सेफ सिटीज़ को चालान्स अपनी हदूद में रहकर जारी करने पर मुतनबा कर दिया। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी लाहौर ने रावलपिंडी के नेशनल हाईवे एरिया में चालान्स किए, जो मोटरवेज पुलिस के मकामी इख्तियारात की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। CCD की सूबे भर में मौसर कार्रवाइयां। IG पंजाब ने एडिशनल IG CCD पंजाब को तारीफी लेटर दे दिया। CCD ने कम वक्त में सूबे भर में खतरनाक गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन करके इनका खात्मा किया। गैंग्स संगीन जुराइम और आवाम में खौफ व हिरास फैला रहे थे। पंजाब आर्कियोलॉजी का एक और अहम इकदाम। हड़प्पा म्यूजियम में 4 नई गैलरियां खोल दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि गैलरियां वज़ीर आला पंजाब के विजन का नतीजा है। महकमा आसार कदीमा ने वज़ीर आला के विजन को हकीकत बनाया। तारीखी विरसे को महफूज रखना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप खेलने आया हूँ जापान टोक्यो में। तो कल 17 तारीख है, तो कल 17 तारीख को मेरा क्वालिफाई राउंड है
तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। फाइनल जो है वो 18 तारीख को होगा और जो टाइम है क्वालिफाई राउंड का वो कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:45 पे होगा शाम को। पाकिस्तान और भारत वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आमने सामने। पाकिस्तानी ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा आज जापान में जेवलिन थ्रो इवेंट में मद्दे मुकाबिल होंगे। क्या नीरज चोपड़ा अरशद नदीम से हाथ मिलाएंगे या नहीं, सवाल उठ गए। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। पंजाब हुकूमत ने पालतू तोते रखने के लिए नया कानून मंजूर कर लिया। महकमा जंगली हयात के मुताबिक हर तोते की रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। तोते पालने वाले छोटे और बड़े ब्रीडर्स की नई कैटेगरी भी बनाई जाएगी। तोते सिर्फ लाइसेंस याफ्ता डीलर्स को बेचे जा सकेंगे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर गुलाम फरीद का यूईटी का दौरा। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने सेक्रेटरी एचईडी का खैर मकदम किया। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने यूईटी की तालीमी और तहकीकी सरगर्मियों पर जामे ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान यूनिवर्सिटी के मसाइल और एचईडी ताउन के इम्कानात पर बातचीत हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस में दाखिले नए तलबा के लिए तारीफी तकरीब। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनस ने कहा कि 24,700 दरख्वास्तें मौसूल हुईं। 2400 खुश नसीब तलबा को तारीखी दरसगाह में दाखिला मिला। और गुलाब देवी हस्पताल में फंगल बीमारियों से आगाही के लिए वॉक का इनेकाद। एमएस गुलाब देवी हस्पताल प्रोफेसर हामिद हसन ने वॉक में खसूसी शिरकत की। तिबी माहिरीन कहते हैं फंगल इन्फेक्शन की बरक पहचान ज़रूरी है। फंगस फेफड़ों को मुतासिर कर सकता है।